May I come in, ma'am? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good evening, Kavita. Have a seat. How are you? I'm fine. Where are you coming from? I'm coming from Kalkaji. Kalkaji. हाँ But जी. you are from Rajasthan. Yes, ma'am. So who is there in Kalkaji? I'm TGT Natural Science in DDA Flat Kalkaji School. So that's why I'm residing there. Currently working there? Yes. And 8 months you have been working? Yes, ma'am. I joined in September. Okay. So tell something about yourself. My name is Kavita. I come from Savai Madhopur district of Rajasthan. I did my 10th class from Navodaya school and after that 12th class from Darshan Gyan Bharati school. Then I did my post graduation from RIE Ajmer and then graduation from RIE Ajmer and then post graduation from JNU Delhi. Now I am a TGT Natural Science in Delhi Government Schools and recently I have received Star Teacher Award from the Meghshala NGO. About your hobbies and interests? My hobbies are listening Bollywood music sometime and taking tea and coffee. Okay. And you haven't done B.Ed? Yes, ma'am. My graduation was BSc B.Ed integrated course. And which was for how many years? 4 years. What you have written here, 4 years and in the bracket 24 months. What's Ma'am, that? in that biodata, it is given duration of your course in month. So 4 year period of my graduation, and in month I written how many month I did. So 4 years is not 24 months. Ma'am, 8 months like July to May, March we have course. 1 year. नहीं ऐसे नहीं लिखना आपने. और ये 8 months क्या लिखा है? 12th का भी आपने? I'm confused about it. Should I have to write like 1 year completely or 1 year ही होता है ना. जैसे you completed it in 2015. Start कब किया होगा? 2014 में ना. Okay, मुझे लगा कि जुलाई से और हमने मार्च तक वो कोर्स कंप्लीट किया है तो उसके बीच का ड्यूरेशन लिखना. नहीं मंथ्स में आप लिख सकते हैं 12 मंथ्स या 4 इयर्स हो गया तो उसी हिसाब से 48 मंथ्स है ना. ठीक है, ये आपने इसको ठीक कर लेना आप. राइट. ओके. DOE में आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वाई KVS? Ma'am, I always wanted to become a KVS PGT biology and because of that I did my master's so that I can join PGT. But due to some circumstances or COVID, this process is delayed. So because of that, before that I got the opportunity to join TGT. So I joined, but now I'm receiving this opportunity to join as a PGT biology in KVS. So now I'm. But you can always go for PGT biology in DOE also. Ma'am, in DOE, yes, ma'am. But I want a job which I can do anywhere in India. Means But like it's you want a transferable. transferable job. Will you be comfortable in transferable job because it brings along its own challenges? No, ma'am, I don't have any problem with this. And your parents? My parents are agreed with this. Suppose today they agree and tomorrow they say leave it and join DOE. No. Try for it and then join DOE. No, ma'am. Kavita, are you married? No, ma'am. No, sir. Okay. After marriage, if this issue come up. Sir, actually, the person whom I'm going to marry, he also have all India transferable job. So that's why my parents are also. You are already engaged. No, ma'am. बस अभी लड़का देखा है parents के according. So उसके you are confirmed कि Yes, going to marry. Okay. आपने नेट JRF भी किया हुआ है? Yes, ma'am. तो फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज? मैम स्कूल एजुकेशन में ही हमेशा से मुझे रहना था. मैंने नेट JRF और गेट इसलिए क्वालिफाई किया ताकि मैं अपने नॉलेज को और एनहेंस कर सकूं और मैं उस पर और प्रैक्टिकली साइंस को सोच सकूं. इसलिए मैंने नेट JRF और गेट के लिए. PhD करने का सोचा आपने कभी? नो मैम. आगे करना चाहेंगे? नो मैम. नो. ओके. What is your true calling? Actually, true calling about KVS. मतलब क्या आगे क्या pursue करना? After KVS, I want to be in. I want my promotion through system like vice principal and principals all post. In KVS. Okay. Yes, sir. ठीक है. गंगापुर से आप आते हैं, क्या कुछ जानते हैं गंगापुर के बारे में? कुछ फेमस है? यस मैम, वहाँ की स्वीट खीर मोहन बहुत फेमस है. खीर मोहन Yes. लाए आप हमारे लिए? नो मैम. तो फिर क्या फेमस है? और क्या? और
गंगापुर सिटी से ही थोड़े दूर डिस्टेंस पे रणथंभौर नेशनल पार्क है, जहाँ के टाइगर लैंड भी जिसको बोला जाता है। गए हैं आप कभी वहाँ? यस मैम, बचपन में एक बार गए थे। कविता, आपने बायोलॉजी में जूलॉजी या बॉटनी इस किस में रखा है? मेन लाइफ साइंसेज किया है ना, एमएससी, तो दोनों ही था। तो आपको इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा? सर मुझे दोनों में ही इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने लाइफ साइंसेज चूज़ किया। बर्जीज मैनुअल किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करता है? सॉरी सर। बर्जीज मैनुअल नाम सुना हुआ? नो सर। बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर है बर्जीज मैनुअल, ओके। है ना? फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन रात को कितने बजे तक हो सकता है? सर डार्क रिएक्शन ऐसा कंफर्म, डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं है कि वो रात में ही होता है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, जो कि लाइट के एब्सेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि कितने मतलब टाइम उसका फिक्स नहीं है। मतलब जैसे सनसेट हो गया तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट तो बने होंगे कुछ बहुत, हाँ जी। तो डार्क रिएक्शन होगा? यस सर, होगा। जब तक रहेगा? हाँ, जब तक वो प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन के बने हैं वो होगा, तब तक डार्क रिएक्शन भी चलेगा। ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? सर नेशनल पार्क बड़े होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द सब पार्ट ऑफ नेशनल पार्क। ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का हिस्सा ही हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेशनल पार्क में एरियाज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जहाँ पर कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। नेशनल पार्क में किस चीज़ का संरक्षण होता है? सर मोस्टली वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स जो कि अभी जो कि एंडेंजर्ड है, या फिर उनके चांसेस है कि वो एंडेंजर्ड में वल्नरेबल कंडीशन में है, उनके कंजर्वेशन के लिए। मान लीजिए किसी नेशनल पार्क से कोई रिवर जा रही है और रिवर की रेत एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है, ले सकते हैं? सर आई थिंक उसके लिए पूरा गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन होगा तो ही ले सकते हैं। एक्चुअली नॉट अलाउड। उसमें हर चीज़ की सुरक्षा है, जो कुछ भी है, इवन द सॉइल इज कंजर्व्ड देयर, उसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ छेड़छाड़ हम वहाँ पे कर नहीं सकते, है ना? नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखने का प्रावधान है। कितने नेशनल पार्क हैं कंट्री में? सर रिसेंटली एज पर आई नो 104 नेशनल पार्क इन इंडिया। आपने कितने घूमे? सर ओनली वन, रणथंभौर नेशनल पार्क। बॉटनिकल गार्डन कितने हैं इंडिया में? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट। फिक्स नंबर नहीं बताया गया क्योंकि छोटे बड़े बहुत हैं। पहला बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? सर शिवपुर कोलकाता। क्या नाम है उसका? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। अभी नाम हो गया, अभी नया नाम क्या है? सॉरी सर। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। कोई टॉपिक तैयार करके आए? यस सर। किस टॉपिक पर पढ़ाना सर चाहिए? नर्वस सिस्टम। ठीक है, प्लीज। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बता दीजिएगा बस। ओके सर। एंड यू कैन कंसिडर अस एज स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया मैम। आप कैसे हैं मैम? मैं भी बढ़िया एकदम। सबने खाना तो खा लिया? चलो अब एक चीज़ को हम अज्यूम करते हैं। आप सभी ने लाइट भी ऑफ की है ना सबने, और फिर लाइट ऑन भी करते हैं हम लोग। तो आपने कभी ऐसा देखा लाइट ऑन करते हैं लाइट ऑफ करते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है? लाइट ऑन करते हैं मिली सेकेंड्स में ऑन हो जाती है, लाइट बंद करते हैं मिली सेकेंड्स में ऑफ भी हो जाती है। जी मैम। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो लाइट इतनी जल्दी से चालू भी हो जाती है और बंद भी हो जाती है? मैम करंट बंद हो जाता है। वेरी गुड, करंट बंद हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि उस स्विच को ट्यूबलाइट से कनेक्ट कर रही है और वो बहुत फास्ट अपना सिग्नल जो है वो ट्यूबलाइट तक पहुंचा रही है? कौन कनेक्ट करता है स्विच को? वायर। वेरी गुड। तो जो हमारा वायर होता है ये सबसे पहले हम कह सकते हैं बहुत फास्ट हमारी लाइट को कंडक्ट करता है, कह सकते हैं ऐसा। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि क्या ये वायर करंट को जैसे लेके जा रहा है, तो वो करंट को लेके कैसे जा रहा है? चार्ज के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में, राइट? तो हम कह सकते हैं कि ये वायर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में अपने करंट को कैरी कर रहा है।
और एक चीज और कह सकते हैं हम कि जब हमने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, तो पहले जो वायर है वो डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और फिर सिग्नल को ट्यूबलाइट तक भेजेगा। मैम इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स आपके चार्जेस जा रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज जो है वो आपके स्विच से लेकर के ट्यूबलाइट तक जा रहे हैं, जो कि अभी हम आगे नर्व्स के फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले वायर क्या कर रहे हैं, हमने जो भी सिग्नल दिया, ऑफ कर रहे हैं या फिर ऑन कर रहे हैं, उसको पहले डिटेक्ट करेगा, फिर रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा। अब सेम चीज हमारी बॉडी में करता है न्यूरॉन। अब आपको सबको मेरी आवाज तो सुनाई पड़ रही है, क्या टाइम लग रहा है मेरी आवाज को आप तक पहुंचने में? बहुत जल्दी से मेरी आवाज जो है आपके पास आ रही है और आप बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब मिली सेकेंड्स में हो रहा है। तो ये मिली सेकेंड्स में हो कैसे रहा है? तो जैसे वायर वर्क कर रहा था वैसे ही हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स भी बहुत फास्ट विद इन मिली सेकेंड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये फास्ट था वैसे ये भी फास्ट है। ठीक है मैम, आ बच्चे जाइए। फास्ट नहीं ये होते। न्यूरॉन्स मैम होते कहाँ हैं? न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पिंच करूंगी आपको यहाँ भी सेंसेशन होगी। अगर आपको कान से आपको सुनाई पड़ रहा है तो आपको कान की इंफॉर्मेशन भी ब्रेन में जा रही है। अगर आपको पैर में कभी कभी सुई लग जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मिली सेकेंड्स में हमारे ब्रेन में चली जाती है। तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। जैसे हमारे घर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स है बहुत सारे, वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक लेकर के ठीक है जाते मैम, हैं। आ जाइए प्लीज। इसको रब कर दीजिए मैम। कविता, आपके मार्क्स कितने हैं रिटर्न में? सर 122। कट ऑफ क्या गया है? सर आई एम इन एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी का 105 है। प्लीज हैव सीट। और आपकी 122 है। कविता जी, आपने बीएससी इंटीग्रेटेड बीएड के साथ करा है, Yes. तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपने बचपन से ही शायद सोच लिया था कि आपको टीचर बनना है। यस मैम। इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन? मैम हमेशा मेरे जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर किसी भी लड़की ने आज तक मोस्टली 10th से आगे भी पढ़ाई नहीं की है। तो हमारे गांव में एक फ़ीमेल टीचर आया करती थी बचपन में, तो मुझे उनको देख करके लगता था कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मैंने पहली बार किसी फीमेल को एजुकेटेड देखा था। यस मैम। और ये मोटिव भी आपका केवी में जाने का? यस सर, क्योंकि मैंने जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ पर फीमेल्स ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अगर मुझे पहली बार चांस मिल रहा है तो मैं करूँगी। You definitely have that quality to become a teacher. Anyways, there's a term circulating in the social media these days, educator. Have you heard of that term? What is the difference between a educator and a teacher? मैम टीचर में वी कैन से कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है, और एजुकेटर हम कह सकते हैं कि वो एक वाइड, मतलब एजुकेटर के अंदर हम टीचर को कंपाइल कर सकते हैं। एजुकेटर एक बहुत वाइड टर्म है और टीचर। Since you are a biology teacher and you must have faced embarrassing questions. Like, Yes, just ma'am. imagine you become Yes, a biology teacher and you are facing some embarrassing questions. So, and also, if we talk about the sex education, it is still a stigma. We don't often talk about that openly. So, what is your stand on that? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैंने बच्चों को इसके लिए डील किया है, और मैंने बच्चों को सीड से, जैसे प्लांट्स से फ्लावर होता है और फ्लावर से फिर हमें न्यू फ्लावर से फिर से सीड बनता है और सीड से फिर से न्यू प्लांट बनता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। वैसे ही हम हार्ट रेट हमारी है, हम खाना खाते हैं, हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सारे नेचुरल प्रोसेस है। सेम एज रिप्रोडक्शन भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन में भी जो हम सेक्स टर्म यूज़ कर रहे हैं ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसके लिए हमें एम्बैरस होना या फिर हमें शेम फील करने की कोई भी बात नहीं है। तो अगर हम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बच्चों को उसके लिए गाइड भी करना चाहिए, ताकि वो इस तरीके का स्टेप ना ले जिससे कि उन्हें डिप्रेशन हो और वो ठीक है बच्चे। कविता जी, एक मान लीजिए एक आप दिल्ली के एक बहुत ही नामी गिरामी केवी में पढ़ा के आई हैं और आपकी पोस्टिंग अचानक से उत्तर प्रदेश के एक बैकवर्ड केवी में हो जाती है जहाँ पर बच्चे बहुत कतराते हैं आज भी इन वर्ड से, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगी? मैम सबसे पहले तो मैं उन्हें बच्चों को जो नेचुरल प्रोसेस है उससे अवेयर करवाऊंगी,
और फिर उसके बाद में मैं बच्चों को जितने भी प्रोसेसेस है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इन सब से बच्चों को अवेयर करवाऊंगी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हर एक एनिमल, हर एक प्लांट किस एज में स्टार्ट हो जानी चाहिए ये एजुकेशन? मैम आई थिंक फ्रॉम 10 नो 10 years की एज Yes, से। ma'am. ठीक है, बस मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। एक हम जब अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं ना, एक हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, एक हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। ऐसे कोई 2 गोल्स आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? Short term goal is first to clear my PGT biology exam, and long term goal is to become a DC in KVS. Short term is PGT biology. After that you will move onwards to the higher position. That's a nice answer. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I am highly impressed, and I think you are in the merit list. You For stand a sure. very bright डीसी chance से to ऊपर get भी कोई selected. पोस्ट होती है? DC से ऊपर होती है, लेकिन जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होती है, उसके लिए तो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू से आती है। आई थिंक डेमो में तो ज़्यादा ही मिल जाएंगे। ब्रिलियंट डेमो, नेवर सीन। राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, बड़ा बड़ा भी आपने लिखा था, और टॉपिक भी सर भी बोल रहे थे कि काफी टफ है, और इंटरेस्टिंग बना दिया है ना क्वेश्चन। इवन आई डोंट लाइक साइंस एट ऑल, ठीक है, आई वाज लाइक इंडल्ज। और मैडम का क्वेश्चन भी बहुत वैसा था जो कि सारे कई question बच्चे आपने try बहुत किए। अच्छा था, कोई कमी नहीं है। बस एक थोड़ा सा आप ना जब आपने हाथ पहले बांधे हुए थे, बट बाद में आप यूज भी करने लगे थे, एकदम चिपका के नहीं रखने, यू कैन यूज जेस्चर्स, है ना। अच्छा, और टीचिंग में एक चीज थोड़ा सा था, थोड़ा फास्ट चल रहे थे, इसको थोड़ा स्लो डाउन करना है ना, ताकि ग्रास्पिंग अच्छी हो। वैसे तो समझ में सब आ रहा था, बट इट वाज लिटिल फास्ट। सर एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं क्लास में अगर जैसे स्विच होगा तो उस बीच से ऑफ और ऑन करके बताऊंगी, लेकिन यहाँ switch था से नहीं, बाहर हाँ, था। वो मैं समझ गई थी, उसको टीएलएम की तरह आपने यूज करने की कोशिश की, विच इज वेरी गुड। मैम जैसे अभी हम लोग को डेमो के लिए तो स्पेशली इस बार केवीएस ने इंटरव्यू में बोला है, तो क्या हमें टीएलएम वगैरह लेकर जाने हैं? टीएलएम कोशिश करिएगा जो वहीं पर कुछ है ना उसी को यूज करिए, और अगर आप लेके भी जाएंगे तो देखो जरूरी नहीं है कि वो वही allow दें कुछ, हाँ, तो अपनी उन्हीं चीजों को टीएलएम बनाने की कोशिश करें, या छोटा मोटा कुछ ले जाना है तो ले जा सकते। बाकी अब क्या पहनने का प्लान कर? मैम सूट है सिंपल, वो अभी तैयार नहीं हुआ है, हाउ और अबाउट द हेयर स्टाइल? सिंपल ऐसे ही। थोड़ा नीचे लो बन है ना, थोड़ा ये जो फ्री थोड़े बाल हवा में, इनको थोड़ा और। ओके, क्योंकि वो मैं अभी जस्ट 2:30 पे स्कूल खत्म हो गया था, डायरेक्ट हाँ, कोई नहीं, इट्स ओके। अगर सूट भी पहनेंगे फॉर्मल, जिसमें पूरा प्रॉपर दुपट्टा हो, और शूज ऐसे आपने पहने हुए हैं ना थोड़ा सा, मतलब फॉर्मल सॉक्स के साथ सूट नहीं, वो शूज नहीं ना, मतलब आपने सूट पहना है और फिर सॉक्स और शूज पहने यू हुए कैन नहीं कंसीडर जाते। बाटा, उसमें काफी फॉर्मल अच्छे मिलते हैं। अगर आप साड़ी कैरी कर सकते हैं तो नहीं मैम, मैंने साड़ी कभी पहना नहीं है। नहीं पहना, हाँ, तो फिर रहने दीजिए, बट आप सूट पहनिए फॉर्मल, है ना, और थोड़ा स्माइल करके बोलिए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा है और प्लेजेंट लगेगा। बाकी आपका कुछ भी कोई 10 on 10 ही था। फुल मार्क्स हैं बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिठाइयों का इंतजार हमें रहेगा।